Good morning students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you to use stay home and stay safe. Don't go outside your homes. Also don't go into the crowded places. And if it should be necessary, use the face mask covers, take sanitizers with you. Always wash your hands at a specific time of interval up to 20 seconds. Stay home and stay safe. Let's start discussing about the electricity that we have already discussing into the first part of this chapter. In the first part, we are discussing about the electric charges, how they have to be implemented force to each other, electric current rate, flow of the electric current, as well as we are discussing about the specific form of formula to derive the electric current. Now, the today's lecture that we are discussing about these 5 topics. One is about the electric potential and electric potential difference. Otherwise, I will explain the flow of current into the conductor by the voltage cell, maybe electric current and its symbols, Ohm's law, and SI unit of the resistance. These are the topics that we are discussing on the today's lecture. So before we starting these forms, just we have to be discussing what we have to study in the previous class about electric current, about electric charges, how they have to be implemented the force to each other, how we can be implemented in the form of the Q is equal to NE, how we can know the number of electron that is passes through the 1 coulomb of charge. These are the general topics that we are discussing in our previous class. Now, let's be discussing about the today's session, that is about electric potential and electric potential difference. Now, so first we are discussing about the electric potential. What do we mean by the electric potential? So, specific formation like on bringing the electric charges near of any other charge. When you have to bring the electric charge near of any other charge, maybe there is an attractive or repulsive force that should be created according to the formation of the charges. So when you have to take the electric charge to any other electric charges, according to their substantiation, it may be create the repulsive force or attractive force. So electric charge को किसी और charge के पास लेके आएंगे, तो या तो electric charge या तो repulsive charge वहाँ पे generated होगा. So it means the work that against to a specific force that keeps the change into the equilibrium. ये जो force जो लग रहा है, यानी work that can be implemented against the force that is a charge of equilibrium to another which is maybe near or far from it. एक simple definitions के form में देखते हैं. So that particular work is stored into the form of potential energy. ये जो specific work implementation होता है attractive force का, repulsive force का, that is generally stored as a form of potential energy. So work that have been done on the charge is called as the electric potential. ये जो work उस charge पे लगता है as a part of the potential energy is generally considered as the electric potential. So एक दूसरे formation में समझे कि in other words the magnetic field. अब देखो जैसे magnetic field that can be create around the specific form of magnet. जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के आसपास आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फॉर्म अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास फॉर्म होता है. तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म होता है एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सो व्हेन ब्रिंगिंग दैट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं, तो उस पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सट्रैक्टेड होता है. सो वर्क दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग आउट द स्पेसिफिक चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंफिनिटी टू अंडर पोजीशन, उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द दैट पॉइंट कह सकते हैं. तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से कहीं नजदीक या दूर के फॉर्म में किसी भी वर्क पे इंप्लीमेंटेशंस करने के लिए द वर्क दैट कैन बी अगेंस्ट द स्पेसिफिक चार्ज, उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन देखिए उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, or the definitions about the electric potential, the work which required to bring the unit of the positive charge to maybe any form of infinite to the any position against to the electric force is known as the electric potential at that point. उस point के लिए क्या कहेंगे? हम उसको electric potential कहेंगे. So electric potential का V से denotate करते हैं. Electric potential का किससे denotate करते हैं? That can be denoted with the V. So V is equal to what? V is equal to what? अगर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो V is equal to, अगर आप देखें तो वर्क डन दैट शुड बी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. सो W अपॉन क्या होगा? Q हो जाएगा. सो इफ यू हैव टू बी इंप्लीमेंटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज, V is equal to क्या हो जाएगा? W अपॉन Q.
the electric potential is equal to work done divided by the quantity of electric charge, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से पास आउट हो रहा है। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा। चलिए अब इसका ऐसा यूनिट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है। ये जो वर्क है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, वो है कूलम। तो वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं जूल अपॉन कूलम, राइट। और इसका एक दूसरा ऐसा यूनिट है जिसको आप वोल्ट कहते हैं, जिसको आप कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं। तो दूसरा इसका ऐसा यूनिट है इसको वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ रिप्रेजेंटेशन इनटू द वोल्टेज टू द मेमोरी ऑफ द स्पेसिफिक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोल्टा। तो अलेक्जेंडर वोल्टा के मेमोरी में ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका ऐसा यूनिट आप वोल्ट भी लिख सकते हो, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद दूसरा समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए डेफिनेशन दोनों का सेम है, वैल्यूज भी चेंज है, कोई भी चेंज नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिफरेंस अगर आपको देख चेक करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा पहले में कितना वोल्ट है, दूसरे में कितना वोल्ट है, हैविंग अ डिफरेंस। सो द इलेक्ट्रिक potential difference between any 2 points like A and B is a 2 point of the electric field having to be specific form means the work that bring to the unit positive charge from A to B against the electric forces. So electric force के against में A से B के लिए जो work done होता है उसका electric potential difference कहते हैं। So electric potential difference को आप V से denote करते हैं, V is equal to work to be done W अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज V अपॉन Q। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, या आप इसको वोल्ट लिख सकते हैं। दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। मान लीजिए हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं फिजिक्स का और हमें चेक करना है कि 2 अलग-अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक चार्जेस के अगेंस्ट में अगर जो काम हो रहा है तो उस दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो जनरली वी हैव टू बी use the electric potential difference that should be measured with a specific device that is called voltmeter, the VOLTMETER। voltmeter जो specific device होता है उस डिवाइस के यूज करके हम 2 स्पेसिफिक पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। सो द voltmeter is connected to the parallel across the 2 specific points having the potential difference is to be measured। दो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसके पैरेलल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, राइट। दैट शुड बी अ वोल्टमीटर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो अलेक्जेंडर वोल्टा है तो एक स्पेसिफिक उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, दैट इज कॉल्ड वोल्टा सेल। जो वोल्टास का सेल जो था वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इटालियन साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड अलेक्जेंडर वोल्टा। या एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट दैट इज इन कंडक्टेड बाय द सेल। सेल के वजह से कैसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है वो हमें समझाइए। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द फिगर ऑफ वोल्टा सेल एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन। दो में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। नाउ तो अगर हमें अलेक्जेंडर वोल्टास का जो वोल्टास का सेल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करना है तो सबसे पहले जो सेल होता है उसका प्रिंसिपल क्या है कि cells having to be convert the chemical energy into the electric energy। the main principle of this type of formation कि जो केमिकल चार्जेस है उस केमिकल चार्जेस को किसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो होता है सेल जो है वो इंप्लीमेंटेशन करता है। अब यहाँ पे जो फिगर दिया है फिगर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सो जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वी हैव टू टेक अ स्पेसिफिक बीकर। बीकर के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन यूज किया दैट इज कॉल्ड H2SO for सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बीकर और इस बीकर के अंदर मैंने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद उसमें मैंने 2 तरीके के प्लेट्स यूज किए हैं, एक एनोड का प्लेट है एक कैथोड का प्लेट है। एनोड के प्लेट को कॉपर के साथ कनेक्ट किया दैट इज हैविंग अ कॉपर प्लेट दैट इज कॉल्ड एनोड और जिंक का जो प्लेट है उसको मैंने कैथोड कंसीडर किया है। और हमने दोनों को इस तरह इस सॉल्यूशंस के अंदर रखना है कि दे डू नॉट टच टू ईच अदर, दोनों क्या एक दूसरे को टच ना हो ऐसे हमें सॉल्यूशन के अंदर इसको डीप करना है सच अ वे दे डू नॉट टच द ईच अदर। सो 2 प्लेट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे। जैसे आप उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करोगे तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होगा।
कॉपर और जिंक, जो कॉपर से आप जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर ऐड करोगे तो उनके अंदर एक रिएक्शन जनरेटेड होता है। रिएक्शन जनरेटेड होने से कॉपर और जो जिंक है दोनों क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा। अभी क्या करना है कि जैसे ही आप जैसे चार्ज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है जिंक से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मैंने बल्ब कनेक्ट किया है, बल्ब क्या करेगा, वो स्पार्क करेगा, बल्ब दैट कैन बी स्पार्क। तो जैसे आप इसको कनेक्टेड करते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेशन में, जो बल्ब है वहां पे स्पार्क करता है, तो ऐसे में क्या पता चलता है आपको कि ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेशन होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव से कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो सिंपल बैटरी था, इसको सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट जो अलेक्जेंडर वोल्टा थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, जिसको आप वोल्टा का सेल भी कह सकते हो। और इसके अंदर जो स्मॉल बल्ब आपने कनेक्टेड किया है, जो बल्ब जिसकी वजह से लाइट अप होता है, तो करंट कंटीन्यूअसली क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से यहां मूव करेगा, बल्ब स्पार्क होगा, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, फिर नेगेटिव से इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करेगा, फिर मूव करेगा कंटीन्यूअसली जब तक इस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो उसको कैरी करते जाएगा। जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा, ये जो बल्ब का जो ग्लो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए, ये तो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अभी इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसके बारे में समझते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी फ्लो। अभी जैसे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था वो हमें पता था कि नेगेटिव टर्मिनल से कहां मूव करता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। दैट इज अ कन्वेंशनल कि इन दिस पर्टिकुलर फिगर यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो दैट कैन बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। सो टर्मिनल ऑफ बैटरी का जो फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बल्ब को स्पार्क कर रहा है, करंट जो है मूव करता है तो क्या होता है, बल्ब जो है वो स्पार्क होता है। सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट दैट हैविंग टू बी ब्रॉट आउट द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द बल्ब दैट कैन बी ग्लो। सो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे कहां पे, डिपॉजिटेड होते हैं, फिर से वो यहाँ पे कैथोड पे फिर से आते हैं, फिर कंटीन्यूअस कैरी करते हैं, तो कंटीन्यूअसली प्रोसेस वहां पे चलते रहता है। तो अभी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है सेल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ अ सेल देन इट शुड बी मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बैटरी, बैटरी के अंदर फिर से मूव करेगा, कंटीन्यूअसली मूव करेगा। तो एज अ लार्ज पोटेंशियल दैट कैन बी ऑब्टेन, एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी ऑब्टेन इनटू द कंडक्टर। तो ऐसे एक से ज्यादा सेल को आप ज्वाइन करके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्म है कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट वो इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो सिंपल ये जो वोल्टास का सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्टेड करता है, जिसके वजह से कंटीन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस बैटरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मूव करता है, कैसे वोल्टास का सेल यहाँ पे काम करता है। मान लीजिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको बोला होगा, क्या मतलब, इफ आई सेड व्हाट you mean 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इफ अ वर्क दैट हैव टू बी डन टू ब्रिंग आउट द 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज on a formation of the one point to another having the 1 joule work, so the potential difference is called as a 1 volt potential difference. So 1 volt potential difference मतलब क्या, 1 joule upon 1 coulomb। 1 जूल अपॉन 1 कूलम अगर आप लिखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाय Q, उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिंबल्स के बारे में, हाउ यू कैन बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड द सिंबल्स। देखिए आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत अलग-अलग तरीके के उसमें कंपोनेंट्स दिए होंगे, कंपोनेंट्स के सिंबल्स दिए होंगे और सिंबल्स के डिस्क्रिप्शन दिए होंगे, कौन सा सिंबल क्या है, उसका कंपोनेंट्स कैसे उसको इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जब आप सर्किट ड्रॉ करते हैं, सर्किट ड्रॉ के लिए ये सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में दिए होंगे कि इलेक्ट्रिक सेल दिया होगा, इलेक्ट्रिक सेल का फिगर दिया होगा और वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करता है। उसके बाद में बैटरी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल अगर आपने ज्वाइन किए हैं तो उसका कंपोनेंट दिया होगा, रेजिस्टेंस का दिया होगा, रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है उसका एक फिगर दिया होगा, जैसे आपने मैंने ड्रॉ किया ये रेजिस्टेंस जो है वैसे रेजिस्टेंस डिनोटेड होता है की, ऐसे पॉइंट से आप की का फॉर्मेशन की आप यूज कर सकते हैं।
फिर एक से ज्यादा वायर को कनेक्ट करना है, उसके सिंबल्स क्या हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर का सिंबल क्या काम करता है, ऐसे अलग अलग आपको कंपोनेंट्स दिए होंगे, वो सारे कंपोनेंट्स आप बुक के अंदर से आप रिवाइज करके याद कर सकते हैं। चलिए अभी हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करना है वो है ओम्स के लॉ के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है कि राइट द ओम्स लॉ और मे बी डिफाइन द एक्सपेरिमेंट। मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिफाइन द एक्सपेरिमेंट व्हिच शोज द ओम्स लॉ एंड राइट इट कंक्लूजन। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ओम्स का लॉ क्या है वो लिखें और उसके एक्सपेरिमेंट को शो करके उसके कंक्लूजन के बारे में लिखें। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो हमारा एम क्या है, इसमें एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करेंगे उसमें हमारी एम क्या होगा वो हमें समझना पड़ेगा। टू एम की टू अंडरस्टैंड दैट in any definite physical situation, ये ओम्स का लॉ है, आगे मैं समझाऊंगा। To aim that कि any definite physical situation the electric current flow through the conductor is directly proportional to its electric potential difference which is applied across it। ये ओम्स का लॉ है, ये हमें समझना है कि हमें क्या समझना है कि any definite physical situations the electric current flow through the specific conductor is directly proportional to its electric potential difference which applies across it। So that is our aim। अब इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए जो यहाँ पे मैंने फिगर दिया है उस फिगर के अंदर जो रेजिस्टेंस R है वो रेजिस्टेंस R मैंने निक्रोम का वायर लिया है। That I have to use the निक्रोम वायर, 1.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम का वायर मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे 1.5 वोल्ट की बैटरी की जरूरत है, 1.5 वोल्ट ऑफ बैटरी। उसके साथ मुझे वोल्टमीटर की जरूरत है, एमीटर की जरूरत है, की की जरूरत है। These are the substances I required to perform this activity। Now अभी apparatus मुझे क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम इसकी मेथड की तरफ समझते हैं कि what is the method of to perform these activities। एक्टिविटी को परफॉर्म करने के मेथड क्या है पहले वो समझते हैं। तो as shown in the figure, ये जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप फिगर को अच्छे से देख रहे हैं, so first of all connect the nichrome wire। निक्रोम वायर को आपने कनेक्टेड किया है विद द 1.5 वोल्ट बैटरी। कनेक्ट द निक्रोम वायर विद द 1.5 वोल्ट बैटरी एंड एमीटर। एमीटर का भी आपने यहाँ पे यूज किया है। नाउ कनेक्ट द वोल्टमीटर एट द एंड ऑफ दिस टू बैटरी के जो निक्रोम के वायर के जो दो एंड है वहां पे क्या कनेक्ट करो, वोल्टमीटर कनेक्ट करो। वोल्टमीटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सो यूजिंग ऑफ 1.5 meter of nichrome wire which is connected to the battery having two ends with the point of ammeter, and at the end of this resistance wire use the voltmeter। Now there is a key which is generally used to pass the electric current। जैसे आप की को ऑन करते हैं, now that when the key is should be on, the electric current that will flow from the specific point। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा जैसे आप यहाँ पे की को ऑन करेंगे so the electric current having to be passes from that particular circuit। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वहां पे फॉर्म करेगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस पर्टिकुलर डिफरेंस के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों एंड पे उसके जितना होता है। जैसे आप इसको ऑब्जर्व करना है, इसके ऑब्जर्वेशंस को अगर आप समझेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने अलग अलग बैटरीज, ये जो दिख रहा है ना वोल्टेज यानी कि नंबर ऑफ बैटरी है। पहला बैटरी 1.5 वोल्ट का है, फिर दूसरा कनेक्ट करोगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा, तीसरा बैटरी कनेक्ट करोगे तो 4.5 वोल्ट होगा, नेक्स्ट बैटरी को कनेक्ट करोगे तो 6 वोल्ट होगा। ऐसे नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्ट करने पे आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट आई है ओके वो भी यहाँ पे उसका एंपियर इंक्रीज होगा, 0.1 एंपियर, 0.2 एंपियर, 0.3 एंपियर, 0.4 एंपियर होता है। I is equal to फॉर्मेशंस यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो आप जितनी बार भी देखोगे जब आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टाइम आपका इलेक्ट्रिक करंट का एंपियर सेम आ रहा है। तो अगर आप V upon I फाइंड आउट करेंगे, V upon I 1.5 डिवाइडेड बाय 0.115, 3 डिवाइडेड बाय 0.215, 4.5 डिवाइडेड बाय 0.315, 6 डिवाइडेड बाय 0.415। तो ऑलवेज V upon I इट हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है बाय यूजिंग द ओम्स लॉ कि द V I upon V, जो I is to V इलेक्ट्रिक करंट अप टू वोल्टेज का जो ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है इट शुड बी सेम कांस्टेंट
टू इंक्रीज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, उसका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि I/V का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा. देयर इज नो एनी चेंजेस इन द करंट एंड वोल्टेज. द रेशियो ऑफ V and I always be having the constant value, and as well as the experiment of Ohm's which established that the relation between the electric current and the voltage is obtained by the Ohm's law. ये जो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये सबसे पहले ओम्स ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंप्लीमेंटेशन करके समझा है. सो इज टू बी फॉर्मेशन के I/V, ये जो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का जो फॉर्मेशन है, it always be having to be a constant value, that should be not be moving in the specific formation of the parts. Clear? So these are the topics about the Ohm's law. लेकिन अगर मुझे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे ओम्स का लॉ है, क्या ओम्स का लॉ, कि in any definite physical situation that electric current flow through the specific conductor is directly proportional to its electric potential difference applied across it. ये उसका ओम्स का लॉ है. चलो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिराइव करेंगे वो हम समझते हैं. तो ओम्स के लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन एनी डिफाइंड फिजिकल सिचुएशन कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है स्पेसिफिक कंडक्टर के अंदर से, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो उसके अंदर से पास आउट हो रहा है. इट मींस व्हाट, I इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V. It means what, electric potential difference is also be directly proportional to electric current. So it means V is equal to what, IR. Ohm's के लॉ के हिसाब से V is equal to what, IR. So when the formation of the proportional of constant R, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है. जितना आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिल रहा है. So by implementation of the relationship of voltage and electric current having the constant value of R, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं in a specific equation, R is equal to V upon I. R is equal to क्या लिख सकते हैं, V upon I. तो रेजिस्टेंस R को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे. रेजिस्टेंस R is equal to voltage upon electric current. V for the voltage, I for the electric current. So R is resistance. रेजिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है उसका SI यूनिट, तो वोल्टेज को किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट में, और इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं, एंपियर में. तो वोल्ट अपॉन एंपियर. सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू व्हाट, वोल्ट अपॉन एंपियर, ऐसे लिख सकते हैं. अब इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट आप वोल्ट अपॉन एंपियर भी लिख सकते हो, या ऐसी साइन होती है जिसको भी लिख सकते हो, जिसको ओमेगा कहते हैं. क्या कहते हैं, ओमेगा. ठीक है. तो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओमेगा. इट्स सिंबल इज कॉल्ड एज द ओम्स ऑफ ओमेगा, जो आप वोल्ट अपॉन एंपियर भी लिख सकते हो. सो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एंपियर. मतलब क्या, इफ 1 volt of potential difference is applied to the across the specific conductor of the 1 ampere current, it means its resistance is called as a 1 omega. क्या कह सकते हैं, 1 omega कह सकते हैं. क्लियर हो गया उसका लॉ. आई होप कि आज का जो सेशन अभी हमने पढ़ा है अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, वोल्टेज, सेल, सर्किट सिंबल, ओम्स लॉ and about the SI unit of resistance आपको अच्छे से समझ में आया होगा. So keep updating your knowledge by using this type of topics which is available in your textbook. Keep updating. Try to write the answers in your own words after reading each and every paragraph of the textbook. So first of all read the textbook and then write the answers in your own words. When we meet tomorrow, we will discussing about the new topics about the resistance and the resistivity, in which series and parallel connection we will discussing about in the next lecture. So once again, stay home, stay safe, keep updating your knowledge, keep revising, take care, stay home, stay safe, bye.